Hello students, this is the beautiful world of science and technology. I welcome you all for the next session of coal and petroleum. So in this chapter already we discussed fossil fuels, coal, formation of coal, types of coal and products of coal. Already we discussed in the last session. So now in this session today we are going to discuss about the petroleum, formation of petroleum, refining of petroleum, natural gas, energy requirement and natural sources are limited. We will discuss in this session. तो आज के सेशन में हमें यही डिस्कशन कर लेना है पेट्रोलियम का मीनिंग क्या है, उसके क्या क्या यूजेस रहेंगे, पेट्रोल किस तरह से फॉर्म होता है, उसको किस तरह से रिफाइनिंग किया जाता है, उसके बाद हम डिस्कशन कर लेंगे नेचुरल गैस के बारे में. तो लास्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड द नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिट. सो स्टार्ट टुडे सेशन. First one is a petroleum. The word petroleum comes from the Latin word petra means rock and oleum means oil. So word petroleum है वो कहाँ से आया बोलो तो लैटिन वर्ड जो पेट्रा है, पेट्रा का मीन्स क्या है बोलो तो रॉक. पेट्रा मीन्स rock and oleum means oil. Petroleum is naturally occurring dark colored viscous liquid found trapped under the ground. Petroleum is a natural product and this product obtained from the under the ground. ये जो अपना प्रोडक्ट्स है वो हमें कहाँ से मिलता है तो from the ground. It is a complex mixture of various hydrocarbons mixed with the water, salt and other particles. Petroleum is a complex mixture of hydrocarbons with the water, salt and the other particles. Listen, पेट्रोलियम में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स क्या है, मिक्सचर है. सो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन के साथ क्या क्या रहेगा, उसमें वाटर रहेगा, साल्ट रहेगा और क्या बोले तो अदर पार्टिकल्स उसमें क्या है मिक्स है. नाउ सी इट इज लाइटर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट. पेट्रोलियम इज lighter than water and petroleum is insoluble in water. It is an important fossil fuel. We know that petroleum is a very important fossil fuel. अपना जो पेट्रोलियम है वो बहुत ही क्या बोलते तो इम्पोर्टेंट क्या है पेट्रोल फॉसिल फ्यूल. डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट. नाउ सी डीजल एंड केरोसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेट्रोल. पेट्रोल से हमें क्या बोलते तो डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है और क्या बोलते तो केरोसिन हमें क्या है मिल सकता. लिसन, पेट्रोलियम. द वर्ड पेट्रोलियम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पेट्रा. पेट्रा मीन्स rock and oil means oil, and it is a naturally occurring substance obtained from the underground, and it is a complex mixture of hydrocarbons with various kinds of particles like water, salt and other particles. It is a very important for safe fuel. Listen, तो पेट्रोल क्या होता है बहुत ही important for safe fuel है, and it is lighter than the water. वो वाटर से भी क्या रहेगा लाइट रहेगा बट insoluble in the water. So from petroleum we get the petrol, kerosene and the diesel. हमें पेट्रोलियम से क्या होता है पेट्रोल और क्या है डीजल और केरोसिन क्या है मिक्स. Listen, now see the formation of a petroleum. अब पेट्रोलियम किस तरह से फॉर्म हुआ है इसके बारे में हमें डिस्कशन करते हैं. Now see formation of petroleum. Formation of petroleum. Now see, petroleum was formed from an aquatic organism living in the sea. Petroleum is mainly obtained from the aquatic animal that is present in the sea. जो समुद्र में जो aquatic animals रहते हैं उनके माध्यम से क्या होता है पेट्रोल को क्या है मिलाया जाता है. When these organisms died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of the sand and the clay. The aquatic organism that is present in the sea, after the death of a aquatic organism, they settle at the
bottom of the sea and got covered with the layer of sand and the soil. जो बड़े बड़े समुद्र में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जब उनकी डेथ होने के बाद वो क्या है नीचे चले जाते हैं, बॉटम के साइड में जाने के बाद उनके ऊपर क्या हो तो सैंड और सॉइल का क्या है लेयर आ जाता है. The decomposed organic matter as a result of action of a bacteria. Now see, so we know that bacteria play an important role in the decomposition process. Listen, when the aquatic organism settled down and got covered with the sand and the clay, the bacteria decompose the soil particles in the organisms. तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उनके बॉडी को क्या होता है डिकम्पोज करने का काम करते हैं. गॉड ब्यूरिड डीपर एंड डीपर, वो क्या होता है बहुत क्या होता है क्या है डीप जाते हैं. और मिलियंस ऑफ एयर्स absence of air, high temperature and the high pressure transfer the dead organism into liquid petroleum or crude oil or natural gas. Or millions of years ago, absence of air, high pressure, high temperature transferred the dead organism. जब ऐसा होने के बाद वहाँ पर क्या है ज़्यादा ट्रिमेंडस प्रेशर बढ़ने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, बढ़ने के बाद डेड ऑर्गेनिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम. डेड ऑर्गेनिज्म के जो पार्ट रहते हैं उनका किसमें कन्वर्ट हुआ बोले तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल में क्या उनका एंड द नेचुरल गैस में उनका क्या है कन्वर्जेशन. पेट्रोलियम इज जनरली फाउंड टुगेदर विथ नेचुरल गैस डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट नाउ. पेट्रोलियम इज जनरली फाउंड टुगेदर विथ नेचुरल गैस, ये हमें क्या बोलते हो नेचुरल गैस के साथ मिलता है डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट. अर्थ के क्रस्ट में बहुत होल जाने के बाद हमें क्या बोले तो पेट्रोलियम क्या है मिल जाता है. पेट्रोलियम इज ऑब्टेन बाय ड्रिलिंग होल्स ऑयल वेल्स इन द अर्थ क्रस्ट नाउ. पेट्रोलियम इज ऑब्टेन बाय द ड्रिलिंग होल्स, अपने ड्रिलिंग होल्स रहते बोरवेल की तरह उसके माध्यम से उसको क्या बोलते निकाला जाता है. व्हेन वेल इज ड्रिल नेचुरल गैस इज फर्स्ट कम्स आउट विद द ग्रेट प्रेशर and after sometimes oil comes out first itself and then it is pumped out. Now see, when well is drilled, जब हम खोदे खोदेंगे दुनिया में खोदने के बाद पहले क्या आता है तो बहुत प्रेशर के साथ क्या है नेचुरल गैस आता है, उसके बाद क्या हो तो क्रूड ऑयल आना क्या है स्टार्ट होते हैं. तो ऑयल ऑब्टेन इज ब्लैक इन कलर एंड इट इज टर्म्ड एज अ ब्लैक गोल्ड ड्यू टू इट्स कमर्शियल इंपॉर्टेंस. नाउ सी, द ऑयल ऑब्टेन इज ब्लैक इन कलर, जो ऑयल निकलता है नेचुरल गैस निकलने के बाद कुछ समय के बाद जो ऑयल आता है उस वेल से उसका कलर क्या रहता है टोटली ब्लैक कलर रहता है. दिस कॉल्ड द ब्लैक गोल्ड ड्यू टू इट्स कमर्शियल ऑफ इंपॉर्टेंस. ध्यान में रखिए उसका क्या बोलते बहुत सारे क्या है कमर्शियल के यूजेस. द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वाज ड्रिल्ड इन द पेंसिल्वेनिया यूएसए इन 1859. दुनिया में फर्स्ट जो ऑयल की वेल है कहाँ पर ड्रिल ये क्या था तो उसको क्या है इन यूएसए अमेरिका एंड पेंसिल्वेनिया में क्या बोलते 1859 में फर्स्ट वेल को क्या उन्हें ड्रिल किया. ऑयल वाज फर्स्ट स्ट्रक एट मक्कम इन असम इन 1867. तो हमारे हिंदुस्तान में 1867 में क्या बोलते मक्कम इन असम में क्या उसका ये हुआ था. ऑयल वेल्स इनटू इंडिया आर फाउंड एट असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड द रिवर बेसिस ऑफ गोदावरी एंड द कृष्णा. तो हमारे हिंदुस्तान में मोस्टली कहाँ पर ऑयल मिलता है तो असम है, गुजरात है, बॉम्बे है एंड द बेसिस ऑफ गोदावरी एंड द कृष्णा नदी, जो अपना गोदावरी और कृष्णा रिवर से उसके बेसिस में हमें क्या है तो पेट्रोलियम गैस क्या है मिल जाता है. अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. सबको मानो ध्यान में रखिए पेट्रोलियम वाज मोस्टली obtained from the aquatic organism that is present in the sea. When these organisms died, they settled down and got covered with the soil and the clay and other particles. Millions of years ago, due to the tremendous temperature and the pressure of organism, and these organisms are converted into the crude oil and the petroleum. So first, natural gas is obtained from the well. So after some time, the oil, black oil, come out. तो जब पेट्रोलियम आते समय क्या पहले नेचुरल गैस आता है, उसके बाद ब्लैक ऑयल क्या है आना स्टार्ट हो जाता है. इस तरह से क्या होता है पेट्रोल को क्या है फॉर्मेशन. नाउ से द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम और डिस्कशन कर लेंगे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल.
refining of petroleum. Now see, refining of petroleum. Petroleum is an oily liquid with a strong smell. Now see, petroleum is an oily liquid with a strong smell. इसका पेट्रोलियम का बहुत ही क्या होता है स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है. It is a mixture of various hydrocarbons such as petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, paraffin wax, etc. It is a mixture of various kinds of hydrocarbons like petroleum gas, petrol, diesel, lubricating oil, and paraffin wax. It is the combination and the mixture of hydrocarbons means hydrogen and the carbon combined to each other. So petroleum is a mixture of various hydrocarbons like petroleum gas, petrol, diesel, lubricant oil, and the paraffin wax. Listen, the process of separating various constituents of petroleum by the fractional distillation is called as the refining. Now see, the process of separating different kinds of constituents of petrol by fractional distillation is called as the refining. So refining is the process. So in this process, the various kind of constituents of petroleum are separated with the help of distillation. With the help of fractional distillation is called as the refining. It is carried out in a petroleum refinery. Now see, it is carried out in a petroleum refinery. Now see in this diagram. यहाँ पर क्या होता है पेट्रोल को क्या है डिस्टिलेशन किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोल. Understand? The process of separating various constituents of petroleum by the fractional distillation is called as the refining, and it is done with the help of a petroleum refinery. In this process, now see how petroleum is refining. In this process, crude oil is heated to about 400 degrees Celsius in the furnace, and the vapors thus form. Now see, so in the refining process, पेट्रोलियम इज हीटेड अप टू 400 डिग्री सेल्सियस. तो रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या मतलब पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को क्या है लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक उसको क्या बोलते टेम्परेचर क्या है अप्लाई किया जाता है. इन फ्यूनस एंड देन वेपर्स थस फॉर्म. उससे क्या निकलेंगे वेपर्स निकलेंगे और पास इनटू द फ्रैक्शनल टावर. व्हेन वी अप्लाई द हीट टू द क्रूड ऑयल एट द 400 डिग्री सेल्सियस, vapor are formed, and this vapor are transferred with the help of the fractional tower. The hydrocarbons with the highest boiling points condense first and are collected at the base of the fractional tower. Now see, the hydrocarbons with the highest boiling point, जो हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोल में प्रेजेंट रहते हैं जिनके पास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स, जिस हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा वो फ्रैक्शनल टावर के क्या होते बेस में आकर के है बैठ जाते हैं. विद द रिसाइनिंग rising vapors, the hydrocarbons with the lower boiling points condense at a different height. Now see, with the rising vapors, the hydrocarbons with the lower boiling points, जिन hydrocarbons का lower boiling points रहेगा वो condense at a different height में क्या हो condense होते हैं. The process continues till the crude oil is separated into the different fraction. The gases, hydrocarbons do not condense and escape from the top of the tower. Now see, the gases, hydrocarbons do not condense. जो गैसेस हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं वो कंडेंस नहीं होते एंड एस्केप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन द फिगर बिलो. नाउ सी, तो आपको फिगर में क्या है उनके इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पर क्या है दिया है. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन कांसेप्ट सी नेचुरल गैस. नेक्स्ट वन कांसेप्ट इज नेचुरल गैस. Natural gas. Natural gas is easy to transport through the pipes. So natural gas is easy to transport with the help of pipes. तो natural gas हम क्या बोलते हैं पाइप के माध्यम से उसको क्या इजीली क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं. So it is an important fossil fuel. ध्यान में रखिए natural gas is a important fossil fuel because we can easily transport with the help of pipes. It is found along with the petroleum under the earth crust. तो पेट्रोलियम के साथ हमें क्या बोलते हैं अर्थ क्रस्ट में क्या है मिल जाता है. It contains mainly methane and used as a domestic and industrial fuel. So natural gas mainly contain methane, and this methane is used for the domestic and the industrial fuel. तो मीथेन जो रहता है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल fuel में हमें क्या है बहुत ही उपयोगी पड़ता है.
Natural gas stored under the high pressure as a compressed natural gas loss. नेचुरल गैस को कभी भी क्या होता है हाई प्रेशर में इसको क्या है स्टोर किया जाता है. CNG compressed natural gas is usually as the motor fuel as it is a clean and less polluting. Nowadays CNG play an important role for controlling the air pollution because it produces the less polluting. जो भी रहता है उससे ज़्यादा क्या होता है प्रदूषण नहीं होता है. The advantage of CNG is that it can be directly supplied for use at homes and factories through the pipes now. The main advantage of a CNC is that it can be directly transferred with the help of pipes at the homes and the factories. हम घर को और फैक्ट्रीज को क्या होता है पाइप के माध्यम से क्या होता है नेचुरल गैस को क्या है ट्रांसफर कर सकते हैं. Such a network of pipes exists in some cities of India and some parts of the world. तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे जो पाइप्स है पूरे कुछ इलाके में है और दिल्ली में भी हमें क्या है वो नजर आते हैं. Natural gas is also used in the manufacture of many chemicals and fertilizers. Also, natural gas is used for the manufacture of different kinds of fertilizers and the chemicals. In India, natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and in the Krishna Godavari deltas. हमारे हिंदुस्तान में जो अपना नेचुरल गैस है मोस्टली वो कहाँ पर फाउंड होता है बोलते त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा में क्या मोस्टली वो फाउंड. Understand? Natural gas. Now next one is energy requirement. Next one concept is energy requirement. Energy requirement. With the rising population and advancement in the technology, our energy needs have increased tremendously. Nowadays, with the rising population and the tremendous progress of technology, हमारे पूरे विश्व में आबादी बढ़ने के कारण और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने के कारण आज हमें क्या बोले तो एनर्जी की क्या है कमतरता क्या है बढ़ रही है. We need more energy to run factories and the latest gadgets, tractors and the tubewells used in the modern agriculture and power to work. Instead, use of computers at homes, office and factories also lead to the electrical energy in the consumption. So nowadays, the different kinds of technological instruments are using. Such electronic machines are mostly work on the electrical power. So you must be required a lot of electrical energy. आजकल टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होने के कारण बहुत सारे ऑफिसेस और बहुत सारे घर से भी जहाँ कहीं भी वर्क चलता है तो वहाँ पर क्या होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की क्या है बहुत जरूरत पड़ती है. More than 75% of the world's total energy requirements are made by fossil fuels. तो पूरे विश्व में लगभग 75% जो एनर्जी के ऊपर जितनी भी मशीन्स वर्क करते हैं किसके ऊपर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फॉसिल फ्यूल्स. While petrol alone satisfies 30% of the world's total energy requirement. तो पूरे विश्व में 30% जो पेट्रोल के ऊपर क्या होता है उसका क्या है वर्क चल जाता है. लास्ट वन इज नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड. Natural resources are limited. Natural resources are limited. Now see, as already studied, natural resources like fossil fuels take millions to air form, and our present rate of consumption of fossil fuel is much faster than the rate of their formation. So we know that already we study natural resources like fossil fuels take a millions time for the formation. तो सभी को मालूम है फॉसिल फ्यूल रेडी होने के लिए मिलियन साल जाते हैं, लेकिन आजकल आबादी बढ़ने के कारण टेक्नोलॉजी बढ़ने के कारण उसका यूज करने का जो प्रोसेस है वो क्या तो रैपिडली क्या है ग्रोथ हो चुका है. इफ वी कंटिन्यू टू डू सो वी विल सून रन आउट ऑफ द देम. अगर हम कंटिन्यू इसी तरह से उसको यूज करते रहेंगे तो एक दिन वो टोटली क्या हो खत्म हो जाएंगे. सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द overuse of fossil fuels. Now see, so which problems are associated overuse of fossil fuels? कौन से ऐसी समस्या आती है, कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो फॉसिल फ्यूल को हम क्या हो हद से ज़्यादा क्या हो यूज करें. Exhaust stage of existing fossil fuels, pollution of air, water and soil as a result of extraction, processing and the burning of fossil fuels. Now see, a lot of burning fuels causes the aquatic animals, water, air pollution, soil pollution in the human beings. अगर हद से ज़्यादा अगर फॉसिल फ्यूल्स अगर बर्न होते गया तो उसका क्या होता है एयर के ऊपर हो जाएगा,
वाटर के ऊपर, लैंड के ऊपर और लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका क्या होता है बहुत बड़ा क्या है इफेक्ट होता है। ग्लोबल वार्मिंग अगर ऐसे चलते रहेगा तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या है बढ़ोतरी होती रहेगी। एनर्जी क्राइसिस इन द फ्यूचर, तो फ्यूचर में क्या होता है एनर्जी की क्राइसिस आने की समस्या आने के बहुत क्या है चांसेस है। लिसन, दिस आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद नेचुरल रिसोर्सेज। लेसन ये प्रॉब्लम्स क्या होते हैं एनर्जी की वजह से क्या है आ सकती है। नाउ सी कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, तो फॉसिल फ्यूल्स को हम किस तरह से कंजर्वेशन कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स मेनली कोल एंड पेट्रोलियम आर बीइंग यूज्ड अप एट ए फास्ट पेस। आजकल क्या होता है हम बहुत क्या है टेक्नोलॉजी के माध्यम से और अपने नॉलेज के माध्यम से उसको क्या है बहुत सारा क्या है ज़्यादा यूज़ करें। दे विल बी फिनिश्ड सून इफ डू नॉट मैनेज देम प्रॉपर्ली। अगर उसको प्रॉपर्ली अगर मैनेज नहीं करेंगे तो कुछ ही समय में क्या हो तो फिनिश हो जाएंगे। वी शुड ट्राई टू मेक यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी टू मीट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। सो नाउ वी मस्ट बी ट्राई टू मेक यूज टू रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमें क्या करना है, इससे अगर बचाना है तो हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करना बहुत जरूरी है। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इज दैट डू नॉट कॉज पॉपुलेशन। इफ यू आर यूजिंग द renewable resources, so such kind of resources cannot affect on the environment। अगर हम renewable resources को अगर यूज करते हैं तो क्या हो तो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या उसका इफेक्ट नहीं है। नाउ दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। हम किस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नेचुरल गैस शुड बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नेचुरल गैस को हम क्या बोलते हो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी को उसको क्या है यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ सोलर कुकर, सोलर हीटर्स एंड other appliances that use solar energy should be encouraged। ये सोलर एनर्जी के ऊपर चलने वाले जो कुकर्स है, हीटर्स है, जो अदर एप्लीकेशंस है वो हमें क्या करना है यूज करना है। विंड पावर शुड बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज पॉसिबल। जहाँ पर पॉसिबल होता है वहाँ पर क्या हमें विंड एनर्जी को क्या करना है यूज करना है। लिसन, सो विंड पावर शुड बी यूज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाइड्रोलिक पावर शुड बी जनरेटेड फ्रॉम वाटर बॉडीज विद द हेल्प ऑफ डैम्स। तो डैम्स के माध्यम से क्या हमें हाइड्रोलिक पावर से क्या बोलते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या है जनरेट करना है। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम द बायोमास शुड बी यूज्ड इन द सेमी अर्बन एरियाज। जो हमारे बायोमास जो भी बायोगैस जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं हमारे ग्रामीण भागों में भी उसको क्या करना है स्टार्ट करना। तो इस तरह से हम क्या बोलते हो फॉसिल फ्यूल को क्या कर सकते हैं कंजर्व कर सकते हैं। लिसन, नाउ सी लास्ट वन कंसेप्ट जूडिशियस यूज ऑफ एनर्जी। तो हमें एनर्जी को किस तरह से हमें क्या है बचाना। स्विच ऑफ लाइट्स फैन इट इज व्हेन नॉट इन यूज। जब उनका यूज नहीं होता है हमारे फैन, टीवी हो, जो कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, उसको हमें क्या करना है स्विच ऑफ करना। यूज अप्लायंसेस लाइक कुकर, हीटर, गीजर ओनली व्हेन नीडेड। जब भी हमें जरूरत पड़ती है तभी हमें कुकर, हीटर, गीजर को क्या करना है यूज करना है। रिड्यूस द फ्लेम व्हाइल कुकिंग फूड। जब भी हम फूड को बॉयल करते हैं उसका जो फ्लेम रहता है, जो आग रहती है, उसको थोड़ा सा हमें कम करना है। यूज सीफियरलेस एंड ट्यूबलाइट्स दैट यूज लेस एनर्जी इंस्टेड ऑफ बल्ब्स। तो जब हम बल्ब यूज करते हैं वो ज़्यादा एनर्जी करते हैं। इंस्टेड ऑफ बल्ब्स यू आर यूजिंग द सीफियर्स एंड द ट्यूबलाइट्स। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द प्लेस ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। हमें क्या करना है सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द प्लेस ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। Use of pressure cookers for cooking and keep the vessels covered while cooking. It reduces the cooking time and thus save the energy. Use of pressure cookers. हमें क्या करना है उसमें कुछ कुक करना है तो हमें क्या है से ज़्यादा प्रेशर देता है वैसा कुकर हमें क्या करना है यूज करना है। ओके, इट्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर। इस तरह से अपना चैप्टर क्या बोलते हैं पर कंप्लीट हो चुका है। सो ऑल स्टूडेंट्स मस्ट बी ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज। सभी बच्चों को इसका क्या बोलते एक्सरसाइज क्या है सॉल्व करना है। सो इन दिस चैप्टर ऑलरेडी वी डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ फॉसिल फ्यूल, हाउ इट इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कोल, formation of a coal, types of a coal and products of a coal. And next one, petroleum, formation of a petroleum, refining of a petroleum, formation of a petroleum, natural gas, energy requirement and natural resources are limited, and conservation of fossil fuels. So already we discussed in this chapter. Okay, we'll stop here. We will continue on the next session with the new chapter.